First of all, thanks for giving me this opportunity. This festival holds immense cultural and religious significance, reminding us of the eternal struggle between God and evil and the ultimate triumph of virtue over vice. Dussehra commemorates Lord Rama's victory over the devil king Ravan, who had abducted his wife Sita. In some parts of India, it also celebrates the victory of goddess Durga over the demon Mahishasur. Both these stories symbolize the victory of righteousness, truth and courage over falsehood, injustice and evil. In many parts of North India, the epic story of the Ramayana is dramatized through elaborate performances called Ramlila. On the 10th day of the festival, enormous effigies of Ravan along with his brother Kumbhakarna and Meghnad are filled with fireworks and set ablaze. This act symbolizes the defeat of evil and is a spectacular display of light and sound. Historically, Dussehra also marks the end of Kharif harvest season, with farmers beginning to harvest these crops. Dussehra teaches us that no matter how powerful evil seems good, we always triumph in the end. खुशी रहना, तुम 7th क्लास आपको हिंदी में बताएंगे ऊपर। सुप्रभात आमूला प्रबंधक महोदय, संचालक महोदय, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा सदम्य नमस्ते। मेरा नाम खुशी राणा है। मैं कक्षा 7A की छात्र हूँ। आज दशहरा के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व रामायण की कथा से जुड़ा हुआ है। विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिससे यह दिन बुराई से अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया है। इस दिन लोग अपने घरों में सजावट करते हैं और विषय रूप से रावण के पुतले को बनाते हैं। विभिन्न स्थानों पर भी रामलीला का आयोजन होता है। बच्चे और बड़े सभी उत्साह के साथ इस नाटक का आनंद लेते हैं। नैना सागर from 7th class. First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself. Well, I am Naina Sagar from class 7th A. Today I am going to present a speech on the occasion of Dussehra. So please listen to me very carefully. Dussehra is the famous festival of India. It is also called Vijayadashmi, and it is celebrated after 9 days of Navratri. The festival marks the victory of good over evil. According to the Ramayana, Lord Rama killed the demon king Ravan on this day and saved Mata Sita. To remember this event, people burn the effigies of Ravan, Meghnad and Kumbhakarna. In many places, people organize Ramlila play, showing the story of Lord Rama. Fairs of fireworks and colorful programs are also held during Dussehra. People enjoy sweets, meet friends and celebrate with happiness. Dussehra gives us the message that truth always wins in the end.
It teaches us to be honest, brave and to fight against evil. Thank you and have a nice day. Happy Dasara. सारे राज्य में शोर मचा हुआ है। राजा दशरथ राम को राज तिलक करके राजा बनाने की घोषणा कर रहे हैं। ये तो तुमने मेरे मन को खुश करने वाली बात बता दी। अरे रानी केकई, तुम तो कितनी भोली हो। अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा अपना बेटा तो गुलाम कहलाएगा, गुलाम। बहन, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा राजा बन जाए? तुम ऐसा करो कि राजा से अपने उन 3 वचनों को मांग लो। ठीक है तो। रानी कौशल्या सुमित्रा, आज रानी केकई क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? महाराज, रानी केकई अपने कक्ष में ही होंगी। चलो मैं इनके कक्ष में ही जाकर देखता हूँ। राजा कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि रानी कैकई अपने कक्ष में भी नहीं है। तब वह दासी से पूछते हैं, दासी, रानी केकई कहाँ है? महाराज, महारानी केकई अपने कोप भवन में है। चलो मैं उनके कक्ष में ही जाकर देखता हूँ। रानी केकई, आपने अपना कैसा हाल बना रखा है? कहो क्या बात है, आप रूठी हुई क्यों हो? महाराज, मैंने सुना है आप अपने बेटे को राजा बना रहे हो। हाँ रानी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं अपने बेटे राम को राजा बना रहा हूँ। महाराज, मैंने आपसे कभी 3 वचन मांगे थे। हाँ रानी, मैंने आपको 3 वचन देने का वादा किया था। महाराज, एक बार फिर से सोच लीजिए। वचन देते वक्त कोई आनाकानी मत करना। हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं, हम वचन देने से पीछे नहीं हटेंगे। महाराज, मैं 2 वचन मांगना चाहती हूँ। रानी, मांग लीजिए अपने 2 वचन। तो महाराज, मेरा पहला वचन है मेरे बेटे भरत का राज तिलक हो, और मेरा दूसरा वचन है आपके बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास। आज महल में इतनी उदासी क्यों है और पिताजी भी दिखाई नहीं दे रहे? पुत्र, तुम्हारे पिताजी अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर लेटे हैं। चलिए मैं उनके कक्ष में जाकर देखता हूँ। और पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? अपनी उदासी का कारण बताइए। पिताजी, आप अपनी उदासी का कारण बताइए। पुत्र, रानी केकई ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा है। मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हूँ। राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, ये तेरी मैया अपने मोर मुकुट तू, ये तेरी मैया अपने मोर मुकुट तू, साधु का भेष धरा तारी माता, साधु का भेष धरा तारी माता, राम बनो को जाता री माता। प्रभु श्री राम, आप यहाँ कैसे आए? क्या तुम हमें नदी पार कराने में सहायता करोगे? ये क्या कह दिया? ये तो मेरी सौभाग्य की बात है कि मैं आपको नदी पार कराऊंगा। अभी रुकिए प्रभु, मैं अभी आया। केवट सबसे पहले प्रभु श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता माता के चरण धोता है। उसके बाद वह उन्हें बहुत प्रेम भाव से नाव पर बिठाता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हम तीनों के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक अंगूठी है। कोई बात नहीं माता। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण तथा माता सीता पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। यह दोनों वनवासी कौन हैं? यह कितने सुंदर है। चलो मैं इनसे विवाह के लिए पूछती हूँ। हे वनवासी, तुम कौन हो? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। हे वनवासी, तुम कौन हो? क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। नहीं।
हे वनवासी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हे वनवासी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? एक बार की समझ में नहीं आता। भैया मेरी रक्षा करो, भैया रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बहन सुपरखा, क्या हुआ? तुमने अपनी नाक पे हाथ क्यों रखा है? भैया, वन में 2 वनवासी आए थे, उनसे मैंने शादी की पूछी और उन्होंने मना कर दी और मेरी नाक काट दी। उनका इतना दुस्साहस कि उन्होंने मेरी बहन की नाक काट दी। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। रावण अपने मामा मारीच के पास जाता है क्योंकि मामा मारीच वेश बदलना जानते थे। वह सोने का हिरण बनकर कुटिया के आसपास घूमने लग जाता है। देखिए कितना सुंदर हिरन है, आप मुझे उसकी मृगछाल ला कर दीजिए। राम सीता के लिए मृगशाला लेने चले जाते हैं। मामा मारीच राम जी को लेकर कुटिया से दूर चला जाता है। रामचंद्र जी हिरन को तीर मार देते हैं। हाय लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। हाय लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। आवाज सुनकर सीता बेचैन हो जाती है तथा अपने देवर लक्ष्मण को राम की रक्षा के लिए भेज देती है। अभी मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, आप पीछे से इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण रामचंद्र जी के रक्षा करने के लिए चल देते हैं और रावण अपना साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता कंदमूल लेकर आती हैं। साधुजन भिक्षा ग्रहण कीजिए। जैसे ही रावण रेखा के अंदर पैर रखकर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, रेखा के बारे में उनको पता चल जाता है और वह कहते हैं, आप भिक्षा मुझे रेखा के बाहर आके दीजिए। मैं भिक्षा बाहर आकर नहीं दे सकती, यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण ने खींची है, आप भिक्षा अंदर आकर ही लीजिए। और रावण बिना लिए ही लौटने लगता है। रुकिए साधु महाराज, मैं आपको भिक्षा बाहर आकर देती हूँ। जैसे ही सीता भिक्षा लेकर बाहर आती है, रावण उसको उठाकर अपने रथ में बिठा लेता है। सीता रोने लगती है, कहती है मुझे छोड़ दो, लेकिन रावण नहीं छोड़ता है और अपने रथ को आकाश मार्ग में ले जाने लगता है। रास्ते में रावण को जटायु मिलता है। वह अपने बड़े बड़े पंखों और चोंच से सीता को बचाने की कोशिश करता है। रावण उसके पंखों को काटकर जटायु को घायल कर देता है। सीता अपने आभूषणों को उतारकर रास्ते में गिराती जाती है। रावण सीता जी को लेकर अपनी नगरी लंका में पहुंच जाता है। सीता जी को अशोक वाटिका में राक्षसियों के पास छोड़ देता है। जब राम हिरन बने मामा मारीच को मारकर अपनी कुटिया पर आते हैं, वहां सीता को नहीं पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं तथा सीता जी को ढूंढने निकल जाते हैं। सीता जी को ढूंढते ढूंढते उनको जटायु मिलता है। जटायु उनको सारी बात बता देता है। जटायु की बात सुनकर राम लक्ष्मण किष्किंधा नरेश सुग्रीव के पास जाते हैं। वहां जाकर वानरों की सेना तैयार करते हैं। सबसे बुद्धिमान हनुमान जी को सीता जी की खबर लेने के लिए अपनी अंगूठी देकर लंका भेजते हैं। लंका पहुंचने पर सीता जी को अशोक वाटिका में देखकर उनके पास अंगूठी गिरा देते हैं। अरे ये अंगूठी तो मेरे प्रभु राम जी की है, इसको यहाँ कौन लेकर आया? हनुमान जी पेड़ से नीचे कूदकर कहते हैं, माता, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मुझे प्रभु ने आपकी खबर लेने के लिए लंका में भेजा है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़ के खा लूं। हाँ पुत्र। हनुमान जी सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। अशोक वाटिका के माली दौड़े दौड़े रावण के राज्यसभा में जाते हैं और सारा वृतांत सुनाते हैं। रावण सारी बातें सुनने के बाद अपने सेवकों से हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए कहता है, लेकिन हनुमान जी को कोई नहीं पकड़ पाता। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ ब्रह्म शक्ति से हनुमान जी को बांधकर राज्यसभा में ले आता है।
पुत्र मेघनाथ, सैनिकों से कह के इसकी पूंछ में कपड़ा बंधवा कर आग लगवा दो और नगर में घुमा दो। सैनिक इसकी पूंछ में आग लगा देते हैं और हनुमान जी को सारे नगर में छोड़ देते हैं। हनुमान जी सारे नगर को जला देते हैं, सारा नगर तहस नहस हो जाता है और हनुमान जी आग को समुद्र में कूदकर बुझा लेते हैं और माता सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। माँ, मुझे अब आज्ञा दीजिए और अपनी कुछ निशानी दीजिए जिससे मैं अपने प्रभु राम को बता सकूं कि मैं माता सीता से मिलकर आया हूँ। पुत्र, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। यह चूड़ामणि ले जाओ, इसे देखकर मेरे प्रभु राम पहचान जाएंगे। हनुमान जी राम जी के पास लौटकर आते हैं, माता सीता जी की चूड़ामणि दिखाते हैं, जिसे देखकर राम प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। सारी सेना लंका के राजा रावण के पास चल देती है। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होता है, लक्ष्मण पर शक्ति लग जाती है और लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। हनुमान जी सुषेण वैद को ले आते हैं। पुत्र राम, सुमेरु पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अगर आप उसको मंगा लो तो मैं लक्ष्मण के प्राण बचा सकता हूँ। हनुमान, आप शीघ्र ही जाओ और सुमेरु पर्वत से वह संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लेकर आओ। हनुमान जी बूटी लेने चल देते हैं। हनुमान जी को बूटी की पहचान नहीं हो पाती है और वह सारा पर्वत उठा ले आते हैं। अरे पुत्र हनुमान, तुम तो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। वैद बूटी पीसकर लक्ष्मण को पिला देते हैं। लक्ष्मण भैया राम कहकर बैठ जाते हैं। रावण और सारी सेना की लड़ाई होने लगती है। रावण मारा जाता है। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोक मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। तेरा घमंड उतार के तुझे बर्बाद करूंगी मैं। एक नारी के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी मैं। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। भी है ये ज़ल्ज़ला है, पूरे जोर पर चला है, कम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। हे अबला नारी, कब तक लड़ेगी? नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मारे। नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी। आखिरी अवसर है ये तेरा, छोड़ दे ये मोह का पाश। तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। महाक्रोध में आई काली, धरती अंबर कांपे। महाक्रोध में आई काली, महाक्रोध में आई काली, धरती अंबर कांपे। बरसाए अग्नि के शोले, मां चंडी की आंखें। महाक्रोध में आई काली, धरती अंबर कांपे। बरसाए अग्नि के शोले, मां चंडी की आंखें। शांत हुई ना महाकाली, कर दुष्ट जनों का सफाया। घबरा के देवों ने शिव को सारा हाल सुनाया। काली के चरण कमल में लेटे शंकर आके, पाँव पड़ा जब शिव पे काली, चाँद हुई घबरा के। अंगना पधारो महारानी, ये मैया, ये मैया। अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी।